Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and today's our topic of discussion is exercise. Students, you know that it is very important chapter जिसमें short questions, MCQs और long questions लाजमी हैं कि पूछे जाएंगे. Students, इनको exercise को solve करने के लिए चलते हैं screen की तरफ. जी students, we are going to discuss the exercise of chapter number 24 and the question number 1 is fill in the blanks. यानी कि एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट में खाली जगह है जिसको हमने अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ फुलफिल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है आर्क्योबैक्टीरिया कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस. यानी कि आर्क्योबैक्टीरिया जो हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं. The first eukaryote appeared about dash years ago. First eukaryote appeared about 1.5 billion years ago. Question 3. Dash presented the theory of origin of species by means of natural selection. Is the Darwin. Darwin ने origin of new species by means of natural selection present की. Dash developed a theory of natural selection essentially identical to the Darwin's. Darwin's के बिल्कुल identical किसने एक theory जो है वो propose की थी? He is the Alfred Wallace. Question 5. Dash are considered to be the ancestor of all life. तमाम life के जो ancestor है, these are prokaryotes. ये prokaryotes होते हैं. Question number 6 है A respiratory protein called dash is found in all aerobic organisms. Student, cytochrome C is found in all aerobic organisms. Question number 7. Total aggregate of a gene in a population at any time is called its gene pool. Students, एक population के अंदर total aggregate of all the genes present at all loci of all the members of species that is known as gene pool. Question 8. Hardy-Weinberg theorem describe a dash population. Hardy-Weinberg theorem describe a dash population. इसमें है non-evolving population क्योंकि Hardy-Weinberg सिर्फ और सिर्फ non-evolving population पे वर्क करता है. Question 9. Dash is a series of genes in the genetic composition of a population over time. Students, that is the mutation. Mutation is a series of genes in the genetic compositions of a population over time. यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके genetic material में change आता है and that is mutation. Question number 10. Level of classifications between species and family is called genus. क्योंकि स्पीशीज और फैमिली के दरमियान में जो है वो जीनस आता है. क्वेश्चन 11. हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर. ये इसका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें p डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट कर रही है और q रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट कर रही है. क्वेश्चन 12. एंड डैश स्पीशीज इज इन imminent danger of extinction through its range. That is an endangered species. Endangered species is imminent danger of extinction. Endangered species को खतरा होता है कि वो आगे extinction की तरफ जा रही होती है. And threatened species वो होती है जिसको खतरा होता है कि वो endangered बनने जा रही है. A dash is localized group of individuals belonging to the same species. A population is a group of localized of individuals belonging to the same species. Question 14. The first photosynthetic organisms used dash as source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugars. The first photosynthetic organism used hydrogen disulfide. Question 15. Dash published an essay on the principle of population. Malthus published essay on the principle of population. Students, question number 2 है that is encircle the correct answers from the multiple choices. Multiple choices हैं, उनमें से आपने correct answer को क्या करना है, choose करना है. Number 1. The gill pouch of mammals and birds embryos are. Option में है sportive, ontogeny, recapitulate phylogeny, homologous structure,
चार्ली में है यूज्ड बाय द एम्ब्रियोज टू ब्रीथ, डेल्टा में है एविडेंसेस फॉर द डीजनरेशन ऑफ अनयूज्ड बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हम गिल पाउच ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स की जब बात करते हैं तो ये हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया, और एम्ब्रियोलॉजी को जो सपोर्ट करने वाली थ्योरी है दैट इज नॉन एज ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलॉजेनी। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, यानी कि जो डिफरेंट एम्ब्रियोज होती हैं, जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो बहुत सी स्टेजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करती हैं, और जब ये सिमिलैरिटी शो करती हैं तो इससे मतलब पता ये चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले जो थे वो एक ही थे, बाद में फिर इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। पॉइंट 2 है डार्विन्स थ्योरी एज प्रेजेंटेड इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मेनली कंसर्न। ऑप्शंस में है हाउ न्यू स्पीशीज अराइज, बीटा में है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, चार्ली में है हाउ अडेप्टेशंस इवॉल्व, डेल्टा में है हाउ एक्सटिंक्शन अकर, ईटा में है द जेनेटिक्स ऑफ एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स तो इसमें आंसर होगा हाउ न्यू स्पीशीज अराइज, एक नई स्पीशी किस तरह से अराइज होती है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का मतलब ये था कि नई स्पीशीज कैसे अराइज होती हैं और उनके अंदर अडेप्टेशंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ही बनता है। पॉइंट नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज। स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि बायोलॉजिकल यूनिट है जो वक्त गुजरने के साथ साथ इवॉल्व होता है। स्टूडेंट्स अ पर्टिकुलर सेल, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अ पॉपुलेशन, अ स्पीशी, एन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर अ स्पीशी है कि एक स्पीशी जो है उसके अंदर वक्त गुजरने के साथ चेंज आता है और एक नई स्पीशी जो है वो बन जाती है। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज स्पीशी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ जीन पूल कंसिस्ट्स ऑफ। एक जीन पूल किस पर मुश्तमिल होता है? अल्फा ऑप्शन में है ऑल द एलील्स एक्सपोज टू नेचुरल सिलेक्शन, बीटा ऑप्शन में है द टोटल ऑफ ऑल एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में टोटल कितनी एलील्स मौजूद होती हैं, चार्ली में है द इंटायर जीनोम ऑफ अ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल, डेल्टा में है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलील्स फॉर अ जीन लोकस विद इन अ पॉपुलेशन, ईटा में है ऑल द गैमेट्स इन अ पॉपुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन ये है द टोटल ऑल अलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी अलील्स मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जीन पूल कहलाती हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 इन अ पॉपुलेशन with two alleles for a particular locus B, capital B and small b, the alleles frequency of the capital B is 0.7. What would be the frequency of heterozygous if the population is in Hardy-Weinberg equilibrium? Students, you know that अगर capital B जो है वो 0.7 है तो small b क्या होगा? 0.3. So इसमें heterozygous को find out करना है तो binomial Neumann expansion में हम देखते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसमें 2pq जो है ये एज हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 2pq की वैल्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 और p जो है उसकी 0.7, q की जो है वो 0.3, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 दैट इज़ 21, 0.21 मल्टीप्लाई 2 0.42, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 0.42 इसका बनता है। सो अल्फा ऑप्शन में 0.7, बीटा में है 0.42 जो कि करेक्ट आंसर है, चार्ली में है 0.49, डेल्टा में है 0.09, ईटा में है 0.21 जो कि बाकी सब गलत हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। In a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, 16% of the individuals shows the recessive trait. What is the frequency of the dominant allele in the population? Students, अब इसमें बताया गया कि 16% जो हैं वो इंडिविजुअल्स रिसेसिव ट्रेट शो करते हैं। अब ये बात आप जानते हैं कि जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो वो हम क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर, 2pq की बात करेंगे। अब जब उसने कहा कि इंडिविजुअल्स हैं रिसेसिव तो वो क्यू स्क्वायर है और वो कितने परसेंट है? 16% है। हम इस 16% को पॉइंट्स में लेकर आते हैं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16, क्योंकि इट इज़ डिवाइडेड बाय 100 तो इट शुड बी इक्वल टू 0.16। अब दोनों साइड्स पे हम अंडर रूट लेते हैं। जब दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट लिया तो 1/2 एक क्यूब जो है वो अकेला रह जाएगा, जबकि दूसरी तरफ देखें तो 0.04 जो है वो आएगा 0.4। अब 4 स्क्वायर जो होता है उसको हम अंडर रूट के साथ कट करेंगे
तो स्केयर जो है वो कट जाएगा, तो 0.4 जो है वो बाकी रह जाएगा। इसका मतलब Q जो है वो 0.4 है। What we have to find out here? We have to find out here dominant allele. If Q is 0.4, then what will be the dominant allele? That will be equal to P is equal to 1 minus Q. Then P is equal to 1 minus Q. It should be equal to 0.6. तो आंसर क्या आएगा? 0.6. तो यहाँ पे ऑप्शंस में है 0.84, 0.36, 0.6, 0.4, 0.48. द करेक्ट आंसर शुड बी 0.6. इसमें चार्ली जो है वो ठीक आंसर कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्शन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन। सिलेक्शन डायरेक्टली किस पर एक्ट करती है? ऑप्शंस में है फिनोटाइप, जीनोटाइप, द एंटायर जीनोम, ईच अलील, द एंटायर जीन पूल। द करेक्ट आंसर इज द एंटायर जीनोम, क्योंकि एंटायर जीनोम जो है ओवरऑल जीनोम, इसके ऊपर ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो एक्ट कर रही होती है। सिलेक्शन किसी एक चीज पे, सिंगल चीज पे एक्ट नहीं करती। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस यू नो दैट के एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका हमने शॉर्ट सा आंसर जो है वो देना होता है। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होती हैं? वी हैव स्टडीड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एवोल्यूशन। अब देखें, अब उसमें जब एवोल्यूशन को पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि कुछ ऐसे चश्मे हैं जहाँ से पानी गर्म होता है और वो नीचे ज़मीन में होते हैं और वहाँ से पानी उबल रहा होता है और वहाँ पे ही जन्म, लाइफ जो है वो जन्म लेती है, ओरिजिन होता है। हम इसको आंसर करना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? These are underwater hot springs deep in the oceans and are considered to be the related with origin of life on Earth. These vents could have supplied the energy and raw material for origin and survival of the early life forms. मतलब यह है कि अर्ली लाइफ फॉर्म्स जो बनी है वो इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ही बनी है। लफ्ज़ हाइड्रो का मतलब वाटर, थर्मल का मतलब हीट और वेंट्स का मतलब चश्मों को हम कहते हैं जहाँ पे वो स्प्रिंग्स, पानी निकल रहा होता है या पानी कलेक्ट होता है, तो वहीं से हम कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर या ओरिजिनेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। हम इसको आंसर कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, different organelles have been produced due to symbiotic association between different prokaryotes residing inside the cell. The idea was proposed by Lynn Margulis. बात क्या की गई है? मतलब कहा यह गया है कि एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है और उसके अंदर डाइजेस्ट होने की बजाय सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेता है। इसको हम एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस एट पॉपुलेशन लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. इट रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट्स, इन चैप्टर नंबर 22 you have discussed the quantitative variations and qualitative variations. जब उसने आप स्किन कलर, वीट कलर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक पॉपुलेशंस के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह से जब हम पॉपुलेशन के आपस में वेरिएशंस, इंटरेक्शंस उनको डिस्कस कर रहे होते हैं एट पॉपुलेशन लेवल, दैट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी कि हमने जेनेटिक्स को डिस्कस करना है लेकिन पॉपुलेशन लेवल के ऊपर डिस्कस करना है, तो इसलिए हमसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? स्टूडेंट्स, यू नो दैट फॉसिल रिकॉर्ड्स जो है वो ये है कि फॉसिल जो हमारे पास मौजूद होते हैं हम उनकी डेटिंग करते हैं। डेटिंग करके हम उनकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा यह है कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस जैसे दिख रहे होते हैं हम नॉर्मली अभी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करते हैं या फिर अदर रिलेटेड फॉसिल्स के साथ कंपेयर करके हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो एज, सिमिलैरिटीज़, डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम एवोल्यूशन में ये बात बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल टू कम्प्लेक्स किस तरह से बने हैं। हम उन फॉसिल्स रिकॉर्ड्स को एक तरह से अरेंज करते हैं जो कि सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। हाउ यू कैन राइट द आंसर? वी कैन रीड हेयर एज लाइक, fossils are either the actual remains or traces of the organisms that lived in ancient geological times. They show a relation of past organisms with present-day organisms. It provides a visual record in a complete series showing the evolution of an organisms. तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द टर्म होमोलॉगी विद अ सुटेबल एग्जांपल। इसका आंसर पहले बता देता हूँ। सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री इज नोन एज होमोलॉगी एंड सच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स।
Homologous organs are functionally different but structurally alike. Examples: the forelimb of humans, cats, whales and bats. इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। हम एग्जांपल्स लें तो फोर लिम्स ऑफ मैन, कैट, डॉग, ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बोन्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होती है। ये होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स है और होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव टू एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि एंसेस्टर यानी कि आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो डिसेंडेंट हैं और एंसेस्टर जो अबव अजदाद हैं एंसेस्टर में यूजफुल थे लेकिन डिसेंडेंट्स के अंदर यूजलेस हैं, ऐसा उनका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स इंसान के अंदर हैं, ईयर मसल्स, विजडम टूथ, टेल बोन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स। These are the examples of vestigial organs. हम लिख कैसे सकते हैं? Vestigial organs are historical remnant of structures that had important functions in ancestors but are no longer essentially presently. These are vestigial organs. You can give the examples: the skeleton of whale and some snakes retain vestiges of the pelvic and leg bone of the walking ancestors, vermiform appendix in carnivorous organisms. You can give the example of these organisms. Next, question 7. How are evolutionary relationship reflected in DNA and proteins? Students, you know that अगर हम दो स्पीशीज़ लें उनको आपस में कंपेयर करें तो उनका डीएनए और डीएनए की जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और प्रोटीन्स की प्रेजेंस है, प्रोटीन्स फाइनल जो बनती हैं, सिमिलैरिटी शो करती हैं। अब ये सिमिलैरिटी बताती है कि इन दोनों का ओरिजिन क्या है, सिमिलर हो सकता है। हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? If two species have genes and proteins with sequence of the monomers that match closely, the sequence must have been copied from a common ancestor. For example, a common genetic code brings evidence that all life is related to each other. Question number 8 है, state Hardy-Weinberg theorem. So इसको सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? That the frequency of the alleles and genotype in a population's gene pool remain constant over generations unless acted upon by agents other than the sexual recombination. This is known as Hardy-Weinberg theorem. तो अब सिंपल इसको स्टेट करें और इसकी इक्वेशन जो है उसको भी आप लिख सकते हैं p plus q whole square as equal to p square plus 2pq plus q square, in which the p is dominant allele and q is representing recessive allele. Students, question number 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़। स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको ख़तरा होता है कि वो इंडेंजर ना बन जाए और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा ना हो कि वो एक्सटिंक्ट बन जाए। तो इसमें एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ एन इमिनेंट इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज वेयर इट लिव्स। We may a threatened species is likely to become endangered in the near future. दोनों की हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखने के बाद दोनों की एग्जांपल्स जो हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम एनी 5 स्पीशीज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसी 5 स्पीशीज का नेम बताएं जो कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं। वी हैव अ लिस्ट: चीता, टाइगर, एशियन लाइन, इंडियन रिनो, चेयर फेसेंट, क्रोकोडाइल, गैवियल। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर्ड कर किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में भी आपने जस्ट ओनली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को याद करना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट हैं। अब जब हमने एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, सेम एज इट इज हमने चंद एक एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को भी डिस्कस किया। इससे मिलते जुलते कई ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर में से भी बनाए जा सकते हैं। सो आपने चैप्टर की हर लाइन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है और समझ के आंसर करना है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे जिसमें वैल्यूज़ थी, इनको चेंज भी किया जा सकता है। देयर मे बी वेरिएशंस इन दैम। तो आपने अच्छे तरीके से हेडिंग के साथ, सब हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।